Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 2nd of June. So, the first topic is peer to peer lending. This topic was covered in the Mint newspaper on page 11, and it is relevant for General Studies Paper 3 Economy. Now, peer to peer lending is emerging as an alternative investment avenue. Under this, the P2P lending platforms allow the person to lend your money to a borrower for a agreed rate. इसमें जो prominent players हैं, जो platforms हैं, वो हैं 12% Club of भारत पे, Cred, MobiQuick and FI. Now this P2P lending operates via two avenues. First is a traditional model which connects investors and borrowers directly, and the second model involves NBFCs, non-banking financial companies. P2P lending किस तरीके से होती है, ये इस फ्लोचार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दो मैकेनिज्म है, ट्रेडिशनल P2P मॉडल और थ्रू पार्टनर P2P NBFC मॉडल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन इन आयुष. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज नोटिफाइड 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष व्हिच इंक्लूड्स 30 हर्ब्स एंड वन प्रोडक्ट व्हिच इज अ स्टेनलेस स्टील neti pot. The Bureau of Indian Standards has also created an additional department to focus on Ayush. It is also formulating international standards in collaboration with the International Organization for Standardization, that is ISO. And on the advice of BIS, a working group on traditional medicine has been created in the ISO TC 215 by the name of Health Informatics. इस बैकग्राउंड में हम आयुष सिस्टम के बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं. इसके अंदर इंक्लूडेड है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड सोवा रिगपा. आयुर्वेदा के बारे में बात करें तो धन्वंतरी, which is regarded as an avatar of Lord Vishnu, is regarded as the god of Ayurveda. Yoga Sutras of Patanjali mentions the Ashtanga Yoga. Naturopathy के बारे में बात करें, so the term naturopathy was coined in 1895 by John Skill and popularized by Benedict Lust of Germany, and both of them are known as the father of the US naturopathy. Unani system means Greek, and it is based on the teachings of the Greek physicians Hippocrates and Galen. Siddha system है वो तमिलनाडु रीजन से इवॉल्व हुआ है. Homeopathy system was created in 1796 by German physicist Samuel Hahnemann, and Sowa Rigpa को हम ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव ERSO. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो पर आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड अ ERSO पायलट इनिशिएटिव. इट एम्स टू मेक इंडिया द रिपेयर कैपिटल ऑफ द ICT प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. The pilot program will start in Bangalore and will run for 3 months on a trial basis. इसके अंदर e-waste rules को रिलैक्स करा जाएगा and companies will be allowed to repair consumer electronics and telecom equipment brought in from other regions. Target ये है कि India hopes to capture 20% of the global repair service market, which is currently valued at $100 billion in the next 5 years. At present, India's revenue from the repair services is only about $350 million. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NABH एक्रेडिशन के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. न्यूज ये है कि एम्स of Nagpur has become the first AIIMS to receive the NABH accreditation. NABH stands for National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. It was formed in 2005. It is a constituent board of Quality Council of India, and it was set up to establish and operate accreditation program for healthcare organizations. Now, under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, AIIMS will be set up in various places in India. Next topic है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. वर्ल्ड मिल्क डे आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश करा है, जो एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है. दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 1 सिंस 2001. 2023 की जो थीम है दैट विल फोकस ऑन शोकेसिंग हाउ डेयरी सेक्टर इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट. इंडिया में मिल्क के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें so India is the largest producer of milk in the world, contributing around 24% of the global milk production. The milk production of India has increased from 137 million tons in 2013-14 to 221 million tons in 2021-22, and the per capita availability of milk has increased from 303 gram per day in 2013-14 to
444 ग्राम पर डे इन 2021-22। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा C+C5 समिट। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ इन द मंथ ऑफ May 2023, चाइना होस्टेड a C+C5 summit in the city of Xi'an, and इस समिट में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ने पार्टिसिपेट करा है। These 6 countries jointly issued the Xi'an Declaration and they also issued a blueprint for the future development of the China Central Asian relations. The discussions focused on the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative. It also focused on people-to-people exchanges and cultural Silk Road program. They also established the China Central Asia Summit mechanism, under which future biennial summits will be held between these countries. जो next summit होगी वो कजाकिस्तान में 2025 में होगी। इसी बैकग्राउंड में हम जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनका मैप देख लेते हैं। यूपीएससी में प्लेसेस इन न्यूज, मैप्स इन न्यूज, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसे देख लीजिए कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान कहां पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम के बारे में। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। इस टॉपिक में जो की डायमेंशंस है जो रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए वो है लिथियम एग्जैक्टली है क्या, उसकी साइंटिफिक एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडिया में लिथियम इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की 2013 रूलिंग क्या थी कि कौन लिथियम और ऐसे रिलेटेड मिनरल्स ओन कर सकता है, हाउ बिग इज द इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एंड हाउ आर अदर कंट्रीज मैनेजिंग द लिथियम रिजर्व्स। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज चिली एंड Bolivia, they have the largest known reserves of lithium. फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड में मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं अबाउट द लिथियम ट्रायंगल। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम ओर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया बाय द नेम ऑफ लिथियम ट्रायंगल व्हिच encompasses the regions of northern Argentina, northern Chile and southern Bolivia, and this region is known as the lithium triangle। मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल has arrived in India for an official summit। इस समिट मीटिंग में काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे गए हैं, जैसे कि हैंडिंग ओवर ऑफ करथा बेजलपुरा सेक्शन ऑफ द रेलवे लाइन, इनॉग्रल रन ऑफ एन इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन फ्रॉम बथनाहा in India to Nepal Customs Yard, inauguration of integrated check post at Nepalganj and Rupehdia, groundbreaking ceremony of integrated check post at Bhairawa in Nepal and Sonauli in India, groundbreaking ceremony of phase 2 facilities under Motihari Amlekgunj petroleum pipeline and groundbreaking ceremony of the Indian portion of Gorakhpur Butwal transmission line। साथ ही में कुछ MOUs भी एक्सचेंज करे गए हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट का MOU फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ petroleum infrastructure, MOU for the development of infrastructure at Dhodra Chandni checkpost along the India-Nepal border, MOU between Sushma Swaraj Institute of Foreign Service and the Institute of Foreign Affairs of Nepal, MOU for cross-border payment between NPCIL and NCHL, project development agreement of Lower Arun hydroelectric project and MOU for the development of Fukot Karnali हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेडिशन के ऊपर। नाउ लॉ कमीशन ने अपनी ओपिनियन दी है कि सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सेफगार्ड्स इन द सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 डील्स विद द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। दिस सेक्शन डिफाइंस सेडिशन एज दैट whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation brings hatred or contempt or excites disaffection towards the government will be punished with imprisonment for life। अगर हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखें तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत एंड मोहम्मद अली, मौलाना आजाद एंड महात्मा गांधी have been tried under the offense of sedition। In 1962, the Supreme Court in Kedarnath Singh versus State of Bihar upheld the constitutional validity of sedition under section 124A of IPC। इसी बैकग्राउंड में हम लॉ कमीशन के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़े। सो इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ये लीगल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन आपकी 1955 में स्टैब्लिश करी गई थी एंड NC
C. सेतलवाद served as the chairman of the first law commission of independent India. इसकी composition के बारे में देखें तो एक full time chairperson है, 4 full time members including member secretary, secretary of the Department of Legal Affairs as ex officio member, secretary of Legislative Department as ex officio member and not more than 5 part time members. कंपोजिशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, तो आप ये याद रख लेना। अब तक 22 लॉ कमीशन सेटअप करी जा चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तेलंगाना फॉर्मेशन डे के बारे में। नाउ 2 जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री के लिए रिलेवेंट है। इसकी ब्रीफ टाइमलाइन देखें। 1948 में इंडियन आर्मी अनेक्स द स्टेट ऑफ हैदराबाद, देन इन 1950 तेलंगाना बिकेम द हैदराबाद स्टेट एंड 1956 में जो हैदराबाद और तेलंगाना का जो रीजन है दैट मर्ज्ड विद द आंध्रा स्टेट टू फॉर्म द तेलुगु स्पीकिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1969 में जय तेलंगाना मूवमेंट स्टार्ट हुई थी फॉर सेपरेट स्टेटहुड ऑफ तेलंगाना रीजन। 2001 में KCR के चंद्रशेखर राव he started the Telangana Rashtra Samiti party to revive the Telangana movement. In 2010, central government set up the Sri Krishna Committee which suggested the creation of Telangana, and in 2014 Andhra Pradesh reorganization bill was passed by the Parliament of India and subsequently Telangana became the 29th state of India. Next topic है हमारा ब्रिक्स के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 20 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ एक्सटर्नल अफेयर्स of India has paid a visit to Cape Town in South Africa to attend a meeting of the foreign ministers of BRICS countries, which comprises Brazil, Russia, India, China and South Africa. They will also finalize the agenda for the BRICS summit which will be held in South Africa in August. इसमें जो और की पॉइंट्स इस आर्टिकल में जो कवर करे गए वो है कि many countries are in the queue to join BRICS, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चाइना का क्या रोल है, चाइना कैसे ब्रिक्स ग्रुपिंग को डोमिनेट कर रहा है, इंडिया का क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स है, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। और लास्ट ईयर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ही फ्लोटेड द आइडिया ऑफ अ कॉमन करेंसी फॉर द ब्रिक्स। एंड आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेक्कन क्वीन के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 20 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ डेक्कन क्वीन A luxury train has completed 93 years of service. ये जो लग्जरी ट्रेन थी ये आपके 1930 में इंट्रोड्यूस करी गई थी बिटवीन मुंबई एंड पुणे and it was introduced as a part of the Great India Peninsula Railway which is now known as Central Railways. It is named after Pune which is also known as the Dakkan की रानी, और ये इस ट्रेन का आप रूट मैप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फॉर वेरियस अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।